Hello there, you're watching our special broadcast on NDTV. I'm Maha Siddiqui. Invest Punjab, as the name itself suggests, is an initiative of the Punjab government to attract more investment into the state. A state that is known for the enterprise of its people. एक ऐसा प्रदेश जहां से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ऐसा प्रदेश जहां पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का एक गढ़ बन गया, एक हब बन गया. लेकिन अब यही प्रदेश यानी कि पंजाब इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एंटरप्राइजेस की तरफ कूच करना चाहता है. एंड दिस इज द मोटिव विथ विच the Chief Minister, the new Chief Minister, now perhaps not so new, Bhagwant Mann, has been out and about meeting industry leaders from Chennai to Hyderabad to tell them about the opportunities in Punjab and to also hear them out as to what they require specifically. Today we have with us the Punjab Chief Minister, Mr. Bhagwant Mann here. We also have a host of leaders from the industry here in Hyderabad. But before I introduce our other panelists, let me first go across to the Punjab Chief Minister himself. Bhagwant Mann ji, आप हैदराबाद में हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स से मिले. किन उम्मीदों के साथ आप आए थे? क्या वो फ्रूटफुल हुई हैं? क्या आप बता पाए हैं कि पंजाब किस तरह से उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे सकता है अपने बिजनेसेस के लिए? जी हाँ, सबसे पहले आप एनडीटीवी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया. पंजाब जो है वो फूड बॉल के तौर पे जाना जाता था पहले देश की, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें पंजाब लीड कर रहा है. मतलब हम वी आर जस्ट 1.5% ऑफ इंडियाज लैंड, बट पंजाब कंट्रीब्यूट 3% ऑफ इंडियाज जीडीपी. सो वी आर लीडर्स इन वेरियस सेक्टर्स. Like I have all the facts, all the figures. We are leading in food processing, textile, auto and auto components, hand tools, bicycle and bicycle components, IT, tourism. We manufacture 80% of tractors used in India. So there's a big opportunity for startups, big opportunity for IT sector, big opportunity for agro industry. We have 2 international airports, 4 domestic airports, and just 200 kilometers away from national capital. So we are giving business friendly environment to the industry. We met industrialists personally, take their suggestions, and 90% of their suggestion is in our industrial policy. So that's why we came to Chennai and Hyderabad, and we met big players like Microsoft, TAFE, Massey Ferguson, and other sectors of the industry. So I hope that Punjab will lead in industry in upcoming years. So all my decision making team is there. We will give a single window system. No hosh posh, no corruption, no other kind of worries to take NOC, CLU like that. So new government in Punjab and big mandate, 92 out of 117. So political stability also there, and Punjab is a land of cultured people, you know, and we are known for our hospitality also. So that's why I'm there to invite them and enjoy our hospitality also. All right. Let me quickly now introduce all our other panelists, the industry leaders who are joining us here on the show today. Dr. Bhaskar Rao Bolineni, founder, KIMS Hospital. Tadapalli Sri Charan, COO and co-founder, Byte Excel. Dr. Rajiv Chibbar, National Coordinator, Association of Indian Medical Devices, member CII Telangana.
Kondaveti Sudhir Reddy, President, Telangana Industrialist Federation; Prem Kumar Vislawat, founder and CEO, Marut Drones. Apart from that, we also have in our audience industry leaders here present in Hyderabad. Kamal Pedinti, Director, Path and C2 Biotechnologies; Sandeep Sharma, Founder and CEO, Summit Consulting Services, former Managing Director and Country Head at Real Page India; Chandu Kumar Poti, Chairman and Managing Director, Versatile Auto Components Private Limited and Versatile Electric Automotive Private Limited; Gautam Reddy Nokala, MD, Safal Life Sciences Private Limited; Dr. Kiran Velaveni, MD and CEO, Welzen Pharma Private Limited; SK Janimia, Chairman, Indian Drug Manufacturers Association, Telangana; J. Rajamouli, former Chairman, Indian Drug Manufacturers Association, Telangana State; Surendra Reddy Kandhala, Founder and Managing Director, EMAG Energy Private Limited; M. Gopal Rao, Secretary, Telangana Industrialist Federation; Jalandhar Reddy, Managing Director, Yen Plus Private Limited. Welcome to all our guests, our panelists, industry leaders, and of course, Chief Minister Bhagwant Mann, who's here with us. Before I go across to our panelists, a quick couple of questions more to the Chief Minister himself. Sir, आपने ease of doing business की बात करी है. ऐसे 3 टॉप इम्पॉर्टेंट बातें जो आपकी सरकार ने आकर जिस पे चर्चा की है, जो आप दे पाएंगे इंडस्ट्री लीडर्स को. आपने सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की, ऐसी ही हमें 2 या 3 और बातें बताइए जो कि अट्रैक्ट करें बिजनेसेस को पंजाब में. देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सबसे पहले तो सिंगल विंडो का मतलब सिंगल विंडो होगा. सिंगल विंडो पहले भी होती थी, लेकिन हर एक अफसर की अपनी अपनी सिंगल विंडो होती थी. तो अभी एक ही सिंगल विंडो होगी, उसी में CLU, उसी में NOC क्लियरेंस मिलेगी. नंबर 2 पे हमारे पास पंजाब में वी आर पावर सरप्लस स्टेट और चीपर पावर. अभी हमने 83% ज़्यादा बिजली पैदा की थर्मल प्लांट से इस टेन्योर में. ना तो जो हाउस होल्ड है, ना उस बिजली में कट, ना खेती के लिए कट, ना इंडस्ट्री को ये बोलना पड़ा हमें. यूजुअली क्या होता है, जब पैडी का सीज़न होता है, बहुत ज़्यादा बिजली की डिमांड होती है, तब इंडस्ट्री को बोल देते थे हफ्ते में 3 दिन बंद करो, हफ्ते में 2 दिन बंद करो. इस बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. वी आर पावर सरप्लस एंड कोल सरप्लस आल्सो. हमारी झारखंड में पचवारा में कोल अभी पिछले हफ्ते हमने उसको ओपन किया. सो वी विल गेट 70 लाख मीट्रिक टन ऑफ कोल पर ईयर, जो कि इनफ है हमारे लिए, पंजाब के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए और खेती के लिए और घरेलू उत्पादन के लिए. नंबर 3 पे मैं कहूँगा कि हमारा जो हम राज्य है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पीपल वहाँ पे रहते हैं. स्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, 32 हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़. और IT सेक्टर मोहाली में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है. और जो मोहाली का IT सेक्टर है, इट्स 10 मिनट्स अवे फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एयरपोर्ट को हम इंटरनेशनल कर रहे हैं, 2 को, अमृतसर और मोहाली. अभी हमारे पास कस्टम्स और इमिग्रेशन का बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हमारे पास टर्मिनल है. अभी दोहा और शारजा जाती हैं. हम वेस्टर्न वर्ल्ड को शुरू कर रहे हैं, टोरंटो, वैंकूवर, लंदन, SFO. और पंजाब is the only state who has franchise throughout the world. There are 3 and 4 Punjabs in Canada. Melbourne is a Punjab, Sydney is a Punjab, London, Southall is a Punjab, and wherever you go, Punjabis are there and successful. So, hardworking people हैं, skilled people हैं, ideas हैं, creative लोग हैं. और जितनी भी इंडस्ट्री इससे पहले हमारे पास आई है, हमारे पास
कारगिल है, हमारे पास पेप्सिको है, हमारे पास टाटा स्टील आ रहा है, सेकंड बिगेस्ट प्लांट आफ्टर जमशेदपुर, देन सनातन टेक्सटाइल आ रहा है, हमारे पास बर्वियो है जो स्टबल खरीद के उससे बायोमास बायो एनर्जी बनाने में अभी रिसेंटली ओपन इन अक्टूबर। हमारे पास क्लास है जो जर्मनी की कंपनी है कंबाइन की, हमारे पास फ्रेडनबर्ग आ रहा है, उन्होंने लैंड ले लिया, वो सेंसर बनाते हैं मर्सिडीज़ वगैरह के। तो मेरे तो टिप्स पे लिखा हुआ है सब कुछ कि कौन कौन हमारे पास है, और जो है अगर आप उनसे भी पूछ लो कि माहौल क्या है, वो कहते हैं हम पंजाब के बारे में ये कहा जाता है, पंजाब भारत का नगीना, वहाँ आता है आदमी मेहमान बनकर, एक दिन के लिए रहता है पूरा महीना। तो पंजाब जो है वो हॉस्पिटैलिटी के लिए मैं फिर कहता हूँ जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इंडस्ट्री वालों को पूछ के इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है। हम आने वाले एक वीक में ईवी पॉलिसी भी डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला ज़माना ईवी का है, ईवी पॉलिसी भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं। और सेमीकंडक्टर का हमारे पास ऑलरेडी मोहाली में बहुत बड़े प्लांट हैं। तो ये तो मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं, बाकी हम 1-2 आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ भी निकाल रहे हैं। जैसे CLU में सबसे ज़्यादा टाइम लगता था टू गेट CLU, लाइक 6 months 7 months, पर हमने क्या किया, एक आइडिया निकाला है। आने वाले दिनों में हम उस पे जो काम कर रहे हैं कि हम स्टैम्प पेपर को कलर कोडिंग दे देंगे। अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है, 50 एकड़ आपने ज़मीन खरीदी, आपने उस पर इंडस्ट्री लगानी है, तो आपको ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर दे देंगे, उसमें लिख देना आप कि मैं इस 50 एकड़ पे इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। तो कलेक्टर रेट के अलावा CLU का पैसा भी उसी में ले लिया जाएगा, और जैसे ही आपकी क्लोजिंग होगी, रजिस्ट्री हो जाएगी, आपके पास ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर है, इट मीन्स CLU आल्सो। सो आपको CLU के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आप अगले दिन ही अपना भूमि पूजन करवा के अपना काम शुरू कर सकते हैं। Bhagwant Maan ji, आपने you've placed 3 most important things that your state is going to provide for ease of doing business. But from what we understand, Invest Punjab has existed for some time, the initiative. What is it that the Aam Aadmi Party government is doing different from the previous governments that should attract more businesses? पहले जब गवर्नमेंट थी जो जितनी भी, जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट कोई आता था वो MOU साइन करता था किसी फैमिली के साथ कि मेरा कितना है इसमें। लेकिन अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है वो साइन करता है MOU 30 मिलियन पंजाबियों के साथ, 0% टॉलरेंस फॉर करप्शन। हम किसी से कोई हिस्सा नहीं मांगेंगे, हम किसी से हमने कोई माफिया खड़ा नहीं करना है, हमने बिजनेसमैन को काम करने का माहौल देना है। 2 यूनिट की परमिशन लेने आएंगे, हम 4 की देंगे। एक ही लालच रहेगा हमारा कि हमारे यूथ को काम दे दीजिए, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो रहा है बड़े बड़े लेवल पे। हमारा यूथ जो बाहर की तरफ कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है, आईलेट्स को भी डिग्री मान बैठे हैं। आईलेट्स इज अ सिंपल टेस्ट ऑफ इंग्लिश, सो उसको भी हम डिग्री मान बैठे हैं। अगर उनको काम मिलेगा, इंडस्ट्री काम देगी, तो ड्रग्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। मैं मेरे यूथ के हाथों से टीका छीन कर टिफ़िन पकड़ाना चाहता हूँ। वो काम पे जाए, टिफ़िन लेके अपनी रोटी लेके जाए, काम पे जाए, अपने घर में वापस आए। मैं किसी भी ऐसे आदमी को नहीं जानता मेरे दोस्त सर्कल में या किसी रिश्तेदारी में जो काम भी करता हो और ड्रग भी लेता हो। ये सिर्फ वो पंजाबी में कहावत है, बेला मन शैतानी दा कर। अगर आप फ्री रहोगे तो बुरी संगत में डालने वाले आपके आसपास रहते हैं, वो आपको इधर उधर भटका के ले जाएंगे। मेरा मकसद है यूथ को रोजगार और स्किल्ड लेबर एंड बहुत ही पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स, वो भी आपको वहीं से मिलेंगे। और हमारी रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी वंडरफुल है। 4 हाईवे हैं दिल्ली के लिए, और दिल्ली कहीं से भी 2.5 घंटे का रास्ता है, कहीं से भी। चाहे आप फरीदकोट से जाओ, बठिंडा से जाओ, तो संगरूर से जाओ, लुधियाना से जाओ, आप चंडीगढ़ से जाओ, 2.5 घंटे का रास्ता है दिल्ली। और इसीलिए पुरानी सरकारों से हम डिफरेंट हैं कि हम
यूथ के लिए काम मांगते हैं वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मांगते थे। कोई भी इंडस्ट्री प्रॉफिट में से हिस्सा क्यों देगी? हम बिजली दे रहे हैं आपको, हम पानी दे रहे हैं आपको, उसके चार्ज ले रहे हैं। आप लोग चार्ज हमें दे रहे हो और टैक्स दे रहे हो, वही टैक्स हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं। तो ये वाला जो पहले मुझे कल भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिले, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कहते जी 9 साल पहले मैं वहाँ पे हेड ऑफिस खोलना था, उसके बाद मुझे इतना तंग किया गया कि मैं आके हैदराबाद खोल लिया। मतलब ये ब्रेन ड्रेन तो चलो दूसरी तरफ है, ये इंडस्ट्रियल जो ब्रेन ड्रेन है वो भी हमारे लिए दिक्कत है। तो अभी पहले बदी थोड़ा टैक्स हेवन सिटी बना दिया था क्योंकि टैक्स कम थे। अब बदी का वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। तो आप आइए, चंडीगढ़ आइए, मोहाली आइए, एंड वी आर मैं आपको बड़ी खुशी से बताता हूँ, वी आर होस्टिंग 2 G20 समिट्स इन अमृतसर on 13th, 14th and 15th March on education, and 21st and 22nd of June next year on labor. We are hosting big international events and Amritsar is a holy city. So कोई भी जाना चाहेगा वहाँ पे तो 40 flights daily from Amritsar to Delhi, Delhi to Amritsar, from Hyderabad also. There are direct flight from Hyderabad to Amritsar. So हम ये कहना चाहते हैं कि हम आप आओगे तो हम आपको आंखें बिछाकर आपका स्वागत करेंगे। आप और 2-4 आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको भी लेके आओगे, इतना अच्छा माहौल हम दे देंगे। ठीक है, ये तो रही जो आप अपॉर्चुनिटीज़ और जो फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब इंडस्ट्री से सुनते हैं उनको क्या चाहिए और उनके कुछ सवाल भी लेते हैं जो उनको क्लैरिटीज़ चाहिए होंगी इस इशू पे। डॉक्टर भास्कर राव से स्टार्ट करना चाहते हैं। डॉक्टर भास्कर राव, मेनी थैंक्स फॉर बीइंग हियर। योर सेक्टर स्पेसिफिकली सर रिक्वायर्स infrastructure at the outset. That's a very critical part of your sector. What are the specifics that you see Punjab possibly can provide, and what do you think there doesn't exist in Punjab as far as your sector is concerned, which you would like the Punjab government to focus on? Yeah, good question. See, healthcare is entirely different when compared to many other industries in the sense it is very heavily capex oriented, and also at the same time it is highly human oriented. Different type of skill sets we need, whether it may be paramedical, nursing, doctors, administration and all. And at the same time long gestation period. That is as far as the heavy capex and long gestation period. And at the same time the public expects affordable cost. Now today the technology cost is also very high. If we can able to provide an affordable cost to the public with so much of human related and these things, we need to come with a lot of incentives to the hospital industry, especially when it is being a long gestation period, heavy capex. The loss funding in the first 3-4 years is very difficult to sustain the hospital at the affordable cost. When we want to provide a affordable cost towards the patients, somewhere we could able to adjust for 3-4 years of the concession period from the bank loans and at the taxes, and if we can able to provide, and we can able to provide a good healthcare facility in Punjab. The second important thing, the healthcare we should able to see it is a creating a lot of job opportunities. If any single bed create directly or indirectly 10 people employees from the high-end people to the lower cadre people. So that's where we can able to provide, and also needs a good space in the heart of the city, which is going to be very expensive to put it by the private people, that if it can able to give by the government at a affordable cost. The second important thing, when the hospital grows, we need to provide minimum 500 to 600 beds. May not be in the beginning. In the beginning we may start with 100. When the hospital is being growing, then you require more, and then the viability will be there, and then we can able to reduce the cost towards the patient. And as you mentioned that there is a single window period that you can able to get all the permissions, we can able to get it done. Later on, even the running hospital also needs a lot of permissions like fire and the OC.
the permissions from the government, also many pharmacy and all. That also make it very single, nearly 50 to 60 people has to give the permissions to establish a proper healthcare facility. That also if you maintain and ease of running the hospital during the running procedure also, then that encourages to more and more people can come and establish the hospitals. Once it is established, you create opportunity for the jobs and also the affordability towards the patient. Even today in Hyderabad, we are doing the lung transplants 100 per month coming throughout the India, and is the biggest center we are doing in Asia. Okay. So these type of high-end ones, you need good technology. Dr. Bhaskar Rao, basically you're also, one important point that you've raised here, scaling up. Bhagwant Maan ji, scaling up एक important aspect होता है किसी भी business में. सिर्फ initial level पे ही facilitation की ज़रूरत नहीं होती है, बाद में भी जैसे उन्होंने point out किया ज़रूरतें होंगी. I understand कि अभी Invest Punjab में recently आपने Housing and Urban Development Ministry को delegate किए हैं powers, जहाँ पे वो single window में काफ़ी काम कर सकते हैं. उस तरह का क्या आगे के लिए स्केलिंग अप के लिए भी कोई आपके पास आइडियाज हैं जो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, करेंगे, पाइपलाइन में हैं? देखो, हेल्थ केयर इज आवर प्रायोरिटी. एजुकेशन एंड हेल्थ केयर स्टार्ट्स फ्रॉम मोहल्ला क्लिनिक. सो वी आर प्लानिंग टू ओपन 16 न्यू मेडिकल कॉलेजेस. आउट ऑफ 16, 3 are in construction mode with latest technology, and we have AIIMS in Bathinda. We have 2 Homi Bhabha cancer centers, one in Sangrur, one in New Chandigarh. We have PGI in Sangrur. We have medical colleges. So, as I earlier said, that Punjabis are global citizens. They came to Punjab for treatment. There's a lots and lots of scope for medical industry to come in Punjab. And you are right that once we clear your hospital, but to run the hospital you need many NOCs. Or we are planning to give a nodal officers to medical, nodal officer to IT, a nodal officer to agro. So we are planning to appoint a nodal officer who will take care of your all the worries or NOCs and etc. So you don't need to go to 15 people to 16 people. One nodal officer will provide you all the government clearances. This is clear. So number 2, idea of opening the medical college came from when we have to evacuate more than 500 students from Ukraine. Look at this. यूक्रेन 25 साल पहले आज़ाद हुआ, हम 75वीं अमृत उत्सव मना रहे हैं आज़ादी का. वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल, और वो कोई नलायक स्टूडेंट नहीं थे. दे वर टॉपर्स, 99.1, 99.2, 99.3, 4, 5. But the system is not supporting them to do MBBS or PG there. There is a management quota, there is a flan quota. So we have 23 districts. Every district will have their own medical college, and we are not making that colleges for 224. We are making them on 2040, 2040. Yeah. That's excellent. Let me go across to Dr. Rajiv Chibbar, connected industry there. So I would like you to highlight, if possible, some of the requirements of your sector specifically. Yeah. Thank you, Bhagwan ji. You touched upon very important issues. In fact, the very fact that you talk about G20, for everyone's benefit, and sir, you would be already privy to it, the G20 nations is in fact 90% of the world GDP.
and we are 2/3 of the world population. And India getting a presidency to the G20 means that we can now showcase a resilient economy. The other thing that you touched upon very well was how education and medical will be two fulcrums on which your government will be working. What Rao Saab said right now, and I'll just augment to it, I come from an industry which is the medical device industry. सर मैं पठानकोट तो पटन चेरू ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ. पठानकोट टू ਪਟਨ ਚੇਰੂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ अच्छा हैदराबाद ਚ. ओके Asia's largest factory is here. ओके And I belong to Pathankot, that's why. पंजाबी जी The whole idea is, why did the industry move down south? You talked about scale, I talk about skill development. So the idea of creating medical colleges in isolation without supporting the industry with the right kind of bioscientists, right kind of biomedical engineers will be a futile idea. I think every medical college should also have a similar kind of a skill development council which would also provide the right kind of opportunities to people. The problem is, the moment we talk about medical devices, in isolation, people just think, oh, it's an extension of pharmaceuticals. But today, when COVID struck us, or let's not take COVID as an example, when any disease strikes us, sir, jehdi pehli cheez hondi hai na, sir, the thermometer is the first thing that, or the medical device is the first thing that lets you know that you are into a disease. And that is where people now have started distinguishing between the medicine sector and the medical device sector. You talked about how Baddi, as an API and a pharmaceutical sector, would not, or is not now the Baddi which it was a couple of years back. Sir, we want a similar kind of a thing here. I want to dovetail three aspects. One is how skill development can be scaled up in Punjab, where your dream of having each and every youth engaged, professionally engaged, will be done, number one. Number two, we want to look at the aspects of how industry, my kind of industries, will be able to foster on a very well-oiled infrastructure. Sir, just to say that there will be a single window clearance, there may possibly be medical parks or biomedical parks would be one aspect to it. The other aspect is the entire infrastructure that needs to be dovetailed to it. We need R&D facilities. A research and development facility is mandatory. Today, for any medical device company to prove itself, we need to do animal testing. We need to do large human testings, clinical trials that are required. Those facilities are there. Common warehousing. The other thing that was really impacted during COVID was the entire supply chain in the country. If we have good supply chain blocks or clusters within a state, it helps a lot. ओके सो काफ़ी सवाल हो गए, उनमें से कुछ का आप जवाब देंगे मान? हाँ जी, देखो रिसर्च का यहाँ तक सवाल है. हमारे पास रिसर्च सेंटर हैं, आईटी सेक्टर में हैं, और मेडिकल सेक्टर में हमारे पास कुछ ऑफर्स आई हैं. जब जर्मनी गए थे हम, वहाँ से भी, कि हम मेडिकल रिसर्च पर एक इंडस्ट्री, इस काइंड ऑफ इंडस्ट्री, तो आपने कहा कि थर्मामीटर से ही शुरू होता है सब कुछ. सो मैन्युफैक्चरिंग में हमने उनको कहा कि आप अगर मैन्युफैक्चर करके कहीं एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, करो. वी विल गिव यू द इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर, स्किल्ड लेबर, एंड जो मेडिकल लाइन में चाहिए होता है. मैं यूक्रेन को, मैंने यूक्रेन का नाम लिया, कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे जिसकी वजह से हमारा यूथ वहाँ जा रहा है. तो सीखने के लिए तो कहीं से भी सीख सकते हैं. सो हम साउथ से सीखने भी आए हैं, बिकॉज चेन्नई इज़ लाइक मेडिकल टूरिज्म के लिए की हब है. तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं अच्छे. प्राइवेट सेक्टर में तो हमारे पास फोर्टीज़ है, मैक्स है, आईवी है, स्कॉट भी है अमृतसर में. लेकिन एक दुख की बात यह है कि
एक ट्रेन जाती थी बठिंडा से बीकानेर, उसमें इतने ज़्यादा कैंसर के पेशेंट जाते थे कि उसका नाम ट्रेन का कैंसर एक्सप्रेस हो गया था। तो अभी हमने बठिंडा में, संगरूर में, चंडीगढ़ में, फरीदकोट में यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी, आदेश यूनिवर्सिटी है। तो अभी हमने कम किया है उस ट्रेन की मतलब भीड़ को, कि हमने फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, रिसेंटली हमने कैंसर पे एक मीटिंग ली थी, ओनली कैंसर। उसमें पेट स्कैन मशीन चाहिए, उसमें हम मोबाइल वैन्स लेके जा रहे हैं। और एक दिक्कत ये है कि एक सोशल स्टिग्मा है, अगर एक मोबाइल वैन जिसमें कैंसर चेक करने की सभी सुविधाएं हो, अगर आप गांव में ले जाओगे, उस पर लिखा होगा कैंसर डिटेन बैन वटएवर, एक भी आदमी नहीं आएगा जी चेक करवाने के लिए। उसके आगे से कैंसर हटाओ, वैसे हेल्थ चेक बैन कर दो, सभी आ जाएंगे। क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा है कि अगर डायग्नोज हो गया फिर क्या करेंगे। डर है जी। डर है जी। बड़ी मुश्किल से हमें लाने पड़े लोग कि नहीं आपका हल करेंगे, आप आइए तो सही। हेपेटाइटिस सी साइलेंट किलर है, वो है, हमारा लाइफस्टाइल है इस तरह का है, पेस्टिसाइड काफ़ी यूज़ हो रहा है। मालवा रीजन खास तौर पे, पटियाला, संगरूर, बठिंडा, मोगा, ये एरिया है। तो वी नीड वेरी गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माई पीपल टू बी हेल्दी पंजाबीज। और पंजाबीज आर नोन फॉर लाइक भंगड़ा, गिद्दा एंड फौज में जाने के लिए, कुश्ती के लिए। और वो पंजाब जो उसकी पंजाब की ग्लोरी जो थोड़ी फीकी हो गई है, उसको हम दोबारा हेल्दी पंजाब भी हमारा एक मिशन है, उसमें आप आइए, सजेशन दीजिए। Welcome. Ji. Let's move to another sector now. We've spoken quite a bit about the medical sector and related aspects, the IT sector now. Mr. Sri Charan, as far as the IT sector is concerned, do you really believe that Punjab can in fact give you grounds where the IT sector can take shape and root? Yeah. Before that, I think we even talk about this thing, right? It's more about important is the education sector, right? Okay. It's very important that, as sir has mentioned, right, the skill development centers are very important. Yes. Whatever it matters, whether it is engineering, medical, or you talk about any of the streams, it's very important that students have to be upskilled. And that actually will bring a lot of energy to the regions that we are there. So, for example, see, we are in EdTech industry, and we go upskill people. So it's very important how you deep understand about the students and also the parents. Because it's not that you just understand about the college, but it should also be very important that you should understand about the students, parents, for them to guide what is better for them, which actually brings a lot of IT companies to the regions. Because it's about, IT companies basically look for skilled people who are very good at basics. And that cannot be lost. And I see that is something which is missing these days in students, whether they are engineering, medical. One difference which I found I want to talk about here. So when you go with doctors or you go with pilots, right, their internship, when you look at it, they actually are the core practical internship. Okay. Medical people, they do house surgeon. All right. And air pilots will have to drive the pilot before they're taking out. All right. Fair point that you've made. Bhagwant Maan ji, ये भी जो ये point raise कर रहे हैं वो है कि इंसेप्शन से एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सब इन्वॉल्व हों, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, तो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर अपने आप ही बन जाता है। आपकी पार्टी बहुत एजुकेशन पे स्ट्रेस भी करती है। जो दिल्ली मॉडल है वो एजुकेशन, और जो आपने मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करी, वही चीज़ क्या पंजाब में आप देख रहे हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन अ वेरी राइट टाइम. वी आर opening more than 100 school of eminence from 9th, 10th, 11th and 12th. So बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग मिलेगी. बच्चा आईटी सेक्टर में जाना चाहता है, आईटी के लिए हम करेंगे. बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है, मेडिकल की उसको ट्रेनिंग मिलेगी. सो अभी
on 24th of this month, we are hosting a biggest parent-teacher meeting of government schools, which never happened before. Parent-teacher meeting सरकारी स्कूल में होगी, वहीं से हमें स्कूल ऑफ एमिनेंस में बच्चे मिलने हैं। यूनिवर्सिटीज़ की मैं बीसीज की मीटिंग ली, क्या ठीक है पैसे लेते हो, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट आपका सेक्टर है, एजुकेशन का पैसे लेते हो, लेकिन आप हर साल डिग्री देकर बेरोजगारों की फौज अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देते हो। वो धरने पे बैठते हैं, वो टैंकी पे चढ़ते हैं, टॉवर पे जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद होती है। स्किल्ड बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे आप? तो हमने यूनिवर्सिटीज़ को ये निर्देश दिए हैं, सबसे पहले करियर काउंसलिंग। जब तक बच्चा प्रॉस्पेक्ट भी खरीद लेता है, फॉर्म भी भर लेता है, तब अपना नाम, फादर्स नेम सब कुछ लिख देता है, तब तक उसको ये नहीं पता होता मैं कौन से सब्जेक्ट लेने वाला हूँ। सो देयर शुड बी अ करियर काउंसलिंग आल्सो, कि तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्या मैथ में जाना चाहते हो, आप साइंस में जाना चाहते हो, आर्ट में जाना चाहते हो। तो हर यूनिवर्सिटी में हमने करियर काउंसलिंग के लिए उनको बोला है, ताकि आपको जो मिले वो स्पेशलिस्ट हो, वो मजबूरी से काम ना कर रहा हो कि मेरे पिताजी ने कहा था इसीलिए मैं आईटी सेक्टर में आ गया, मेरे पिताजी ने कहा था इसीलिए मुझे एमबीबीएस करना पड़ा। जो सुनार है वो सोने के बहुत अच्छे गहने बना लेता है, बहुत अच्छे जेवर बना लेता है सोने के, लेकिन वो चांदी या पीतल को सोना नहीं बना सकता। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आए वो कम से कम सोना तो होना चाहिए ना। उसके बाद आप उसको ट्रेनिंग दे के अपनी लेटेस्ट मशीनों पर कैसे काम करना है उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो एक और हम इसमें काम कर रहे हैं, जर्मनी में हमने सीखा था, एक वहाँ पे बिल्डिंग थी, उसका नाम था मेकर स्पेस। हम उसको देखने गए, क्या है ये। उन्होंने क्या किया, सराउंडिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के साथ कांटेक्ट किया, उनको कहा अपनी लैब 50 बच्चे आते होंगे, 100 आते होंगे, हम आपके लिए एक बहुत बड़ी लैब बनाते हैं, आप बच्चे हमारे पास भेजो। तो आइडिया शेयरिंग में मल्टीप्लाई हो गया, बूस्ट आ गया, 1000 बच्चा आ गया, 1000 बच्चा आपस में आइडिया शेयर कर रहा है, कुछ ना कुछ स्टार्टअप निकलेगा। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर हम मोहाली में सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से बात करके मोहाली में मेकर स्पेस हम बनाएंगे, ताकि स्टार्टअप के लिए उनके पास मशीनें हों, लेटेस्ट कंप्यूटर हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि जर्मनी में मैंने देखा जो लेटेस्ट इवन स्पेस शटल पर भी काम कर रहे थे, वो 4th फ्लोर पर, उनको जो इक्विपमेंट, उनकी मशीनें जो थी वो कंपनियों ने फ्री दी हुई थी, जो लॉन्च करनी है अभी। कंपनियों के लिए भी ये फ़ायदा हो जाता है कि मशीन चेक हो जाती है उसमें कमियां क्या हैं, बजाय इसके कि वो लाखों की गिनती में रिकॉल करें कि इसमें ये कमी रह गई। नंबर 2 पे जो बच्चा जिस मशीन पर ट्रेनिंग लेके गया है वो इंडस्ट्री में जाके वही मशीन मांगेगा, उनका भी बिजनेस का एक बढ़ेगा। तो मेकर स्पेस के लिए भी हम जा रहे हैं, शायद देश का पहला एक ऐसा हम लैब बनाने जा रहे हैं कि जिसमें हर किस्म के बच्चे आएँ और आपस में आइडिया शेयर करें और स्किल होकर आपके पास जाए। मिस्टर प्रेम कुमार के पास जाना चाहूँगी मैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की जो बात है, क्या मिस्टर प्रेम कुमार, इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हाउ कैन दैट बी यूटिलाइज्ड? फॉर इंस्टेंस इन एग्रीकल्चर, can it be utilized? How effectively can it be utilized? If you can, let our audience know, let us know, and the CM as well. Sir, जो एग्रीकल्चर एक चीज़ है सर, 75 इयर्स कंप्लीट हुआ है लेकिन टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन नहीं हुआ है। लास्ट ग्रीन रेवोल्यूशन तक ही रुक गए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आप भी लिया है जो कैंसर ट्रेन का इंसिडेंट है सर, हर दिन जो कैंसर पीड़ित जो पंजाब से राजस्थान जो ट्रेन जाती है, मेजॉरिटी ये है कि जो केमिकल, क्योंकि किसान स्प्रे तो कंपलसरी करेगा, जो पैडी हो कौन सा भी क्रॉप, पेस्टिसाइड स्प्रे तो कंपलसरी करेगा, जो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो स्प्रे करता है। तो उससे क्या कि डायरेक्ट एक्सेस होने के कारण उसी हाथ से खाता है, उसी एनवायरनमेंट पानी पीता है, तो उसको कैंसर का पीड़ित हो रहा है, सबसे पहला। दूसरा क्या है कि सर पंजाब में 2 चीज़ है सर, एक फार्मर है और यूथ है। तो अभी जब भी फार्मर्स को देखे तो सर कि दे डोंट वांट देयर सन और डॉटर टू बिकम एन फार्मर, बिकॉज जो भी काम एग्रीकल्चर में होता है जो काफ़ी हार्डवर्क मैनुअल होती है।
अभी ड्रोन ऐसा चीज़ है सर, इससे क्या हो रही है कि पहले जो हेल्थ हज़ार्ड जो थी सर उसको दूर कर रही है, और जो स्किल लेबर का जो कमी है उस जैसे पॉलिनेशन जैसे एक चीज़ है सर, जो सुबह शाम शेक करते हैं, जो स्किल लेबर के कारण कमी होने से कारण कंस्ट्रक्शन लेबर या दूसरे लेबर को लेने से कारण जो उसका ईल्ड कम हो रही है। जो जैसे ट्रैक्टर का जो पंजाब ने डिस्ट्रप्शन किया है सर, ड्रोन्स का कर सकता है। उससे क्या है कि एक नेक्स्ट 2 साल में एक 50,000 का ड्रोन और 1 लाख का एम्प्लॉयमेंट केवल जस्ट अडॉप्शन जैसे ड्रोन से हो सकती है सर। एक स्पेसिफिक ड्रोन पॉलिसी स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चर, बिकॉज पंजाब इज़ नोन फॉर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और एग्रीकल्चर में एक डिस्ट्रप्शन पंजाब में होने के बाद बाकी दूसरा स्टेट अडॉप्ट कर सकता है सर। ठीक है सर, बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ड्रोन पॉलिसी कोई हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है पंजाब, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे ड्रोन्स के इस्तेमाल पर, तो किस तरह से आप एनविजन करते हैं? मैं एक यूनिवर्सिटी में विजिट करने गया था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ के पास ही है। वहाँ पे उन्होंने एक पायलट दिखाया जिसमें ड्रोन में 10 लीटर पानी था, तो उन्होंने फिर उसको उड़ा के उस स्प्रे करके दिखाया कि ये पेस्टिसाइड में यूज़ हो सकता है, इसमें पेस्टिसाइड डाल के आप ऊपर से स्प्रे कर सकते हो। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत डेंजरस लेवल पे लो चला गया बिकॉज ऑफ पैडी। वी आर यूजिंग 3800 लीटर्स ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस। Actually, we are exporting water to India, not rice. So, जो ड्रिप सिस्टम है या ड्रोन सिस्टम है सिंचाई के लिए खेती में, ये हमें चाहिए। मैं मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हमारे CEO बैठे हैं इन्वेस्ट पंजाब के, दिस इज़ ए वेरी गुड आइडिया कि हम ड्रोन पॉलिसी भी हम उसमें रखें और इनसे सजेशन लें। दूसरी ड्रोन पॉलिसी एक है, वो तो मैंने HM साहब के साथ बात की है, श्री अमित शाह जी के साथ। बॉर्डर स्टेट है, आजकल ड्रोन यूज़ करते हैं वो ड्रग्स के लिए, और साथ में कुछ ना कुछ हथियार भी फेंक देते हैं। बहुत से ड्रोन हम पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो निकल जाता होगा। हमने कहा है कई बार ड्रोन जो हैं वो हमारी तरफ से उड़ते हैं, उधर जाते हैं, ड्रग और मनी या कोई पिस्टल वगैरह जब लेके इधर आ जाते हैं। हमने पकड़े ऐसे कि यहाँ से गया था। लेकिन अब तो ड्रोन शादियों में ड्रोन है, पॉलिटिकल रैली में ड्रोन है, क्रिकेट मैच में ड्रोन है, कोई भी बड़ा समागम हो रहा है ड्रोन है। तो कम से कम जो हमारे वाले ड्रोन हैं वो रजिस्टर तो होने चाहिए ना, कि कहाँ से लिए इन्होंने, किसके नाम पर है। जैसे कार या स्कूटर का, अगर हम कोई ड्रोन ऐसा पकड़ें जो उधर से आ रहा था लेकिन उसका नंबर इधर का था, तो हमें क्लू मिल जाएगा कि किसका था, इसके क्या संबंध थे स्मगलर्स के साथ या व्हाटएवर। सो हम BSF, NI और सेंटर की एजेंसीज के साथ मिलके काम कर रहे हैं। 533 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है। शरारत वो सिर्फ पंजाब में करते रहते हैं, लेकिन पंजाब की धरती इतनी फर्टाइल है, जो चाहोगे, जो बीज दोगे वो उग जाएगा। राइस, गेहूं, सनफ्लावर, किन्नूस, शुगर केन, बाजरा, मूंग दाल, जो चाहोगे उग जाएगा पंजाब में। इतनी फर्टाइल लैंड है, लेकिन नफरत के बीज नहीं उगते वहाँ पे। वहाँ जो सोशल बॉन्डिंग है हमारे लोगों की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसको जो छोटे मोटे जो होते रहते हैं, हम हर रोज़ इन टच हैं विद फेडरल गवर्नमेंट। और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी आपको मैं श्योर करता हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ड्रोन पॉलिसी के बारे में अगर जो आया है सजेशन, इट्स अ वेरी गुड सजेशन। हम इस पे वर्क करेंगे ताकि ड्रोन्स को हम मतलब ट्रैक्टर की तरह, एक एयर ट्रैक्टर बोल लो इसको, उसकी तरह हम यूज़ करें और आपसे आइडियाज़ लें
और जैसे ट्रैक्टर की तरह मल्टीपर्पज करता है सर, आज ड्रोन एग्रीकल्चर में 8 या 9 चीज एक ही ड्रोन कर सकता है सर, क्योंकि अभी सबको केवल स्प्रे पता है सर। जैसा आपने पैडी बोला है, पैडी में ट्रांसप्लांटेशन के लिए, स्प्रेइंग के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पॉलिनेशन के लिए, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, काफ़ी चीज़ के लिए कर सकते हैं सर। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि जो एग्रीकल्चर का सिनोनिम पंजाब होता है, तो इस सेक्टर में, ड्रोन सेक्टर में जो काफ़ी नौजवान लाइक स्टार्टअप मेरे जैसे लोग, काफ़ी लोग आगे आके शुरू किया है। तो जो हम भी किसान जैसे ही है सर, हम भी मेहनत करके प्रोडक्ट बनाते हैं और वेट करते कि गवर्नमेंट जैसे, स्टेट गवर्नमेंट जैसे पंजाब उसको अडॉप्ट करे और उसको स्केल ले जा सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि वो एक पॉलिसी रखेंगे स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जाना चाहूंगी, आई वांट टू गो अक्रॉस टू मिस्टर सुधीर रेड्डी फॉर एन ओवरव्यू सर। How has the industry viewed this approach from the Punjab government to look at opening themselves up for investments, especially from Hyderabad, Chennai, as the Chief Minister has gone? How has the industry viewed it? Good morning, everybody. Honorable Chief Minister Sri Bhagwat Singh Manji, I welcome you to the youngest state of India, Telangana. For the first time, I think you are coming here. Yeah, I welcome you. And I am very happy to know the industrial policy of the Punjab state government. But I have two questions to you. One, basically I am representing MSME sector. I am representing Association of MSME units. So basically, for the last so many years, for the last 6-7 years, the India is projecting India to make as a manufacturing destination for the entire world, and as an alternative to China. But the other side, the manufacturing clusters of Punjab like Ludhiana, Chandigarh, Jalandhar, Mandi, the major industrial clusters are losing its glory of late in the last 10-15 years. And why we are not able to scale up our production levels to China to become an alternative to manufacturing hub of alternative to China? Why we are not able to do that? And what are the policies we should make to make India a manufacturing destination for the entire world? And especially the Punjab should take lead, because from the beginning, Punjab has a history of manufacturing hub of MSMEs. Okay. But of late, it is not there. And the second question is, we are witnessing a lot of transformation in vehicles. India has only 25 crores of vehicles, personal vehicles, either it is motor cars or motorcycles, compared to the total requirement of 140 crore population. Do you have any policy? Because the Ludhiana is once is called the Manchester of the India. So why we are not able to make a EV policy to transform? Why we are not able to make a EV policy? Or if there is a policy, can you just enlighten us about the EV policy? And the third one... Okay, so I'll just interrupt you there because he did speak about EV. Yes. आप उस पर elaborate कर सकते हैं चाहे तो. और उन्होंने बोला मैन्युफैक्चरिंग का क्या पंजाब हब बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मैं हर एक वो चीज़ जो मैन्युफैक्चर के लिए चाहिए होती है हमारे पास है। बाकी पंजाब अलाउज MSMEs to start or expand their operations based on self-certification under the Right to Business Act. आप सेल्फ सर्टिफिकेशन दे के अपना काम शुरू कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कहीं पे कुछ किसी से कोई लेने की कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए वी आर बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ट्रैक्टर, 80%. सोनालिका इज देयर, स्वराज इज देयर. We are biggest manufacturer of bicycle. Hero and A1 is there. Now bicycle components. Now we will announce our EV policy within a week. So lots and lots of electric industrialists are willing to come in Punjab for EV. EV is a future. So बाकी आप हमारे ऑफिसर्स हैं, आपसे बात कर लेंगे हम पर्सनली, और आप आइए, चंडीगढ़ आइए. वी आर होस्टिंग इन्वेस्ट इन बेस्ट, दैट्स द टैग लाइन.
hosting a progressive Punjab Investors Summit on 23rd and 24th of February next year. So we are inviting you, come there. So Punjab will host you and Punjab will boost your industry. And my selfness is employment to the youth. And गवर्नमेंट इंडस्ट्री को पूछ के काम करेगी, इंडस्ट्री को बता के काम नहीं करेगी कि ये बता दिया जी आपको ये लागू है. आपसे पूछेंगे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फोकल पॉइंट्स को अपडेट करना है. एंड वी हैव लैंड बैंक आल्सो, देयर इज नो वरी अबाउट द लैंड. अगर प्राइवेट से खरीदना है प्राइवेट से हम खरीद के देंगे हमारे पास. और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो लेबर लॉज हैं बहुत ही कमाल के हैं. वहाँ पे कोई देयर इज नो स्ट्राइक ऑफ लेबर और समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज माई ओपिनियन दैट पंजाब इज द बेस्ट. Okay. सो आप सीधे पंजाब तरक्की करेगा, नॉर्थ इंडिया, आप हैदराबाद में हैं, चेन्नई में, देश तरक्की करेगा. क्योंकि अपकमिंग टाइम इज like after corona, so now entire world is looking at India. So हमारा टाइम है आने वाला और हमारे टाइम को हम मल्टीप्लाई करें एक दूसरे से बातचीत करके, एक जगह पे ना रहें. देश बड़ा है, मल्टी कल्चर्ड है, 130 करोड़ लोगों का देश है. सबको काम मिले, सब तंदुरुस्त रहें और सब तरक्की में हिस्सेदार बने. अब इतना ही वक्त है हमारे पास, लेकिन अगर आप पंजाबी अंदाज में सबको एक बार इनवाइट करना चाहते हैं तो करें और फिर हम ये पैनल. मैं यही कहूँगा कि हमारे पास सरसों का साग है, हमारे पास मक्की की रोटी है, हमारे पास बिल्कुल वाइट कलर का मक्खन है और लस्सी है. आप आएंगे, 1 महीना रहेंगे, 2-2 किलो आपका वेट बढ़ जाएगा. उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, वो आपने अब टेक केयर करना है. लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे. लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे.